question. I think this screen is visible to all of you. The retirement of an old partner. Okay. So again, I am repeating. Now see here. Chapter name is retirement of an old partner, and topic is CBSE question of 2017. Okay. Journal entry. In this question in board exam had been asked journal entry and capital account of the partners, but I will teach you the from the same question journal entry, revaluation account and balance sheet. Okay, because if any of the information is asking from board in the board exam, so you can solve. अब जर्नल एंट्री करने के लिए जब आता है फुल फ्लेज क्वेश्चन तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, और ऑलरेडी मैंने स्टेप्स लिखवाया है बेटा आप सभी लोगों को कि टू स्टार्ट जर्नल एंट्री फर्स्ट स्टेप वी शुड टेक start from the accumulated profit loss reserve and fictitious assets. Okay, and then after we need to pass the journal entry regarding revaluation account, then goodwill adjustment, new goodwill adjustment, and then after if any asset taken over by the partners, and then settlement of retiring partner. These are the following steps what we have to take before starting the question. We should keep in mind. It will speed your solution. Okay students, so now see in previous class I had shared this question number 35 from DK Goel. The partner's name was Samir, Yasmin and Saloni were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. And further saying that on 31st March 2016, the balance sheet was as follows. So now look at the balance sheet, students. What is the balance sheet? Okay. So balance sheet of Samir, Yasmin and Saloni as at 31st March 2016. Okay. So liability and assets, you will see in liability side there was creditor of rupees 1,10,000, general reserve of rupees 60,000, and capital of Samir, Yasmin and Saloni were rupees 3 lakh, 2,50,000 and 1,50,000 respectively. Right. On asset side you will find cash 80,000, debtors 90,000 less provision 10,000. It is 80,000. Right. Now stock rupees 1 lakh, machinery rupees 3 lakhs, building rupees 2 lakhs, patents rupees 60,000 and profit and loss account 20,000. Okay, so profit and loss, sorry, 50,000. Now total of the balance sheet is 8,70,000. So I think who has not taken the screenshot in previous class, they can take the SS right now. So better take the screenshot of it. Okay, done. Maima done. Maima saying done. Screenshot. Okay. Yes. Okay. So now I'm coming to the next slide for the additional information of the question. So you will see on the above date means on 31st March, Samir retired, and it was agreed that, what was agreed that, now you will look here. First point, debtors of rupees 4,000 will be written off as बैड डेब्ट. एस लिखा है, सो एस को आप ए एस कर लेंगे, ठीक है. सो डेटर्स ऑफ रुपीज 4,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स and the provision of 5% on debtors for bad and doubtful debt will be maintained. Second, an unrecorded creditor of rupees 20,000 will be recorded. Means कि there was a creditor which was earlier not recorded in the books, but now it would be recorded. Okay. Third, patents will be completely written off and 5% depreciation will be charged on stock
machinery and building. So student देखो these are the information regarding revaluation ना. पहला कि डेटर से है तो ये लॉस है. Unrecorded creditors is to be recorded, so this is also loss because increase in liability. And patents will be completely written up. Patents is what assets और इसकी वैल्यू जीरो हो गई, completely written off. Written off means खत्म कर देना है, नहीं दिखाना है दोबारा से एसेट्स में, तो ये भी लॉस हो गया मेरा. और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है स्टॉक मशीन बिल्डिंग, ये भी हमारा लॉस है. सो दिस थ्री आइटम्स रिगार्डिंग लॉस ऑन रिवोल्यूशन. नाउ फर्दर इंफॉर्मेशन इज सेइंग यास्मीन एंड सलोनी. Yasmin and Saloni is the remaining partner because there are three partners, Samir, Yasmin and Saloni. So Yasmin and Saloni will share future profits in the ratio of 3:2. So students, in this question new ratio has been given here. This is what new ratio of Yasmin and Saloni. So now fifth point is saying goodwill of the firm on Samir's retirement was valued at rupees 5,40,000. राइट. तो समीर की जो रिटायरमेंट वाले दिन फर्म की गुडविल की गई है वैल्यूएट 5,40,000. ध्यान देना ये फर्म की गुडविल है स्टूडेंट्स ना, दिस इज फर्म्स गुडविल 5,40,000. नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट कि पास necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm on Samir's retirement. So देखो बोर्ड एग्जाम में जनरल एंट्री तक पूछा था और कैपिटल अकाउंट पूछा था या बैलेंस शीट, बट हम यहाँ पर समीर्स कैपिटल के साथ आल्सो मैंने लिख दिया आल्सो प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ताकि आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप सॉल्व कर सको. जनरल एंट्री पूछा जाए तो जनरल एंट्री, और अगर से पूछता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट सब बनाना है तो आप वैसे भी कर सकते हो. सो के स्टूडेंट्स, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. दिस whole 2 slides are containing the question and information of the question. Okay, now I am moving forward for the solution. I hope this assess you have taken, students. So now move. So students, first we need to pass journal entry, and you know how to pass the journal entry. First we start from the accumulated profit loss reserve. So in balance sheet you will find general reserve was given of rupees 60,000. You will see the question in liability side, general reserve was given of rupees 60,000 and the old partners Samir, Yasmin and Saloni. In retirement there is no any new partner, always all the partners would be the old partners, and this 60,000 should be divided in the old ratio, that is 4:3:3. This is what old ratio. So we have distributed the general reserve, and let's see what the next item. Next item is profit and loss account is given in the asset side. You will see in the question screenshot you have taken. So profit and loss account is given in asset side. So asset side, if it is given, so this will be loss and it should be written off among all the old partners by debiting their capital account. ना. सो ये जनरल रिजर्व कहाँ होता है, लायबिलिटी में होता है, इसलिए इसको डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट किया. बट प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में दिया था, ये दोनों जगह हो सकता है लायबिलिटी और एसेट्स कहीं पर भी, बट क्वेश्चन में एसेट्स में दिया है इसलिए रिवर्स एंट्री कर दिया, सभी पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया इन देयर ओल्ड रेशियो. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो नेक्स्ट information is given in your question. This is very important. First information regarding revaluation, yani accumulated profit loss step is over. Now the second step is regarding revaluation account. So you know that we have to pass maximum 3 entries for the revaluation. One is for profit, other one is for loss, and third one is for closing entry. So in this question we had studied all the additional information. We have found there was all the information regarding loss, but regarding debtors some information was given. When I had calculated, so I found that there was excess of provision for doubtful debt. So if there is excess of provision for doubtful debt, so it should be reduced, and whenever we reduce the provision for doubtful debt, so it should be profit,
because provision for doubtful debt is a part of liability. If it is increasing, it will be loss. If it is decreasing, will be profit. ओके स्टूडेंट्स, सो आप क्वेश्चन में देखेंगे बैलेंस शीट में 90,000 का डेटर दिया है और लेस प्रोविजन 10,000 है और आपने 80,000 का दिखाया हुआ है। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पे दिया है कि डेटर शुड बी रिटर्न ऑफ ₹4,000 एज अ बैड डेब्ट। 4,000 रुपये आपका पैसा बैड डेब्ट हो गया, मीन्स डूब गया। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है कि मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 5%। सो ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल फाउंड कि कितना होगा। सो आप देखो सबसे पहले कि आपका 4,000 रुपये का बैड डेब्ट है। ठीक है, तो डेटर कितने का था? मेन डेटर तो तुम्हारा टोटल 90,000 था। सो 90,000 में से 4,000 रुपया 4,000 जो बैड डेब्ट हो गया उसको माइनस कर दो, तो बचेगा कितना? अब 86,000। तो हम लोग डाउटफुल किस पे निकालते हैं? बैड डेब्ट माइनस करने के बाद जो आता है। तो 86,000 इंटू 5% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो होगा 4,300, राइट। सो 4,300 ये हो गया डाउटफुल डेब्ट और बैड डेब्ट्स कितना है? 4,000। तो टोटल देख लो तो 8,300 हो रहा है और आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 10,000, यानी आपके पास 1,700 रुपये ज़्यादा है। तो अब उसे तो कम करेंगे क्योंकि नेट रिक्वायरमेंट तो 8,300 का है ना। सो अब ध्यान रखो, तो जो 4,300 का प्रोविजन बनाना है वो तो ऑलरेडी बना हुआ है 10,000 का, तो हमको तो कम करना है। तो प्रोविजन अब कैसे करेंगे ये ध्यान से समझिए। इसका मैं दो तरीके से एंट्री करके आपको दिखाऊंगा। एक तो ये आपके स्क्रीन पे है, तो आप चेक करो कि प्रोविजन टोटल हमारे पास कितनी ज़रूरत है? 4,300 रुपये की, क्योंकि 5% आपका 86,000 का 4,300 आ रहा है। तो 10,000 में से 4,300 एज इट इज़ रहने दो क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अब एक्सेस कितना हुआ? 5,700। अब इस 5,700 में से बैड डेब्ट्स माइनस करना है। सो कितने रुपए से डेटर कम होगा? लेस होगा डेटर 4,000 से, क्योंकि बैड डेब्ट्स जितना से डेबिट होगा उतना ही से डेटर कम होगा। सो डेटर 4,000 से कम हो गया, यानी प्रोविजन ऑलरेडी 4,300 वहीं पे छोड़ दिया। 4,000 रुपये का बैड डेब्ट्स हमने ये निकाल लिया 5,700 में से, तो बचा कितना? 1,700 रुपये। ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि हमारे पास 5,700 एग्जिस्टिंग प्रोविजन बनाने के बाद बचा और जिसमें से बैड डेब्ट्स अगर माइनस कर दे तो भी एक्सेस बता रहा है 1,700 रुपये। तो ये हुआ। अब इसको अल्टरनेटिवली हम तुम्हें कैसे बताएंगे ये ध्यान रखो। अगर ये नहीं समझ में आया तो हम मैं आप लोगों को एक दूसरी तरीके से एंट्री भी बता रहा हूँ, आप ध्यान दो। यहाँ पर स्टूडेंट्स यू विल सी अल्टरनेटिवली दिस कैन बी पास्ड। देखो सबसे पहले आपका बैड डेब्ट्स हुआ है, कितना हुआ है बैड डेब्ट्स आप देखोगे यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स आपका 4,000 है, तो जनरल एंट्री क्या करनी चाहिए? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और आपको पता है कि जितने भी बैड डेब्ट्स होते हैं उसे हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बट रीवैल्यूएशन जब हो रहा है तो उसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट में उस टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस भी पीएल अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि बैड डेब्ट्स को डेबिट कर दिया और डेटर्स को क्रेडिट कर दिया 4,000 से। अब दूसरी एंट्री क्या करेंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को हमने 5,700 से डेबिट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास 10,000 रुपये का प्रोविज़न है और एक नया जो प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं हम लोग वो 4,300 आ रहा है टोटल। सो 10,000 में से 4,300 हम अपना निकाल लें, अगर माइनस कर लें जितना हमको मेंटेन करना है, तो अब एक्सेस कितना बचा? 4,000। तो ये एक्सेस जो 4,000 एक्सेस बचा 5,700। अब इस 5,700 का क्या करना है? अगर से कोई और बैड डेब्ट्स या प्रोविजन नहीं रहता तो इसको रिवोल्यूशन में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक्सेस है, 4,300 ही की जरूरत है, 5,700 ये बचा। तो ये जो ऊपर बैड डेब्ट्स है उसको क्या करेंगे? वो बैड डेब्ट्स इसी प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। हमने प्रोविजन क्यों बनाया था कि कभी भी पैसा डूब सकता है तो उसी प्रोविजन से एडजस्ट करना है। तो हमको पता चला 4,000 रुपये ये डूब गया है, तो इसी को हम इस प्रोविजन से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 4,000। तो अभी भी कितना बच गया? 1,700। तो लिखेंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि जो बैड डेब्ट्स डेबिट इसको क्लोज तो करेंगे ना, तो कहाँ से एडजस्ट करके क्लोज करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर हमारे पास है ऑलरेडी तो उसी से हम लोगों को करना है। अगर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं रहा होता है एक्सेस, तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता।
ध्यान से समझना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। अब बैड डेब्ट्स चूंकि रेवोल्यूशन के टाइम अराइज हुआ है तो इसको रेवोल्यूशन में ट्रांसफर करना चाहिए, तो लिखते क्या हम, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स लिखते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास तो प्रोविजन बचा हुआ है। जब प्रोविजन है हमारे पास तो पहले तो हम प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। तो 5700 रुपये का प्रोविजन बचा हुआ है एक्सेस, तो बैड डेब्ट्स माइनस कर लिया 4000 तो बचा 1700। अब आप ये जो दो एंट्री मैंने किया, अब इसको अगर नेट इफेक्ट निकालो तो देखो ऊपर वाला एंट्री आ जाएगा आपके सामने। ध्यान रखो, यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5700, देखो यहाँ भी है 700, 5700, ठीक है। अब यहाँ बैड डेब्ट डेबिट है और यहाँ बैड डेब्ट क्रेडिट है 4000 से, तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, टू डेटर्स। तो यहाँ पे लिख दिया हमने टू डेटर्स अकाउंट, और रिवोल्यूशन अकाउंट एज इट इज 1700 है, ठीक है। तो आई होप कि दिस इज अंडरस्टूड। आप पेन पेपर लेके चेक कर लो, नोट कर लो कि कैसे क्या आ रहा है। हमने जो बताया वर्बली कि पहले 90,000 में से 4000 बैड डेब्ट्स माइनस करोगे नोटबुक पे, वर्किंग नोट में, फिर 86 आएगा, फिर प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे एज पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 5% ऑफ दैट, सो यू विल गेट 4300 इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो अब आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन इज गिवन 10,000, 10,000 में से 4300 जो अभी रिक्वायर्ड है उसको आप यूज कर लो, उसको रख लो एज इट इज। तो एक्सेस कितना बचा, यानी कि माइनस करेंगे 10,000 में से 4300, तो माइनस करने पे आएगा 5,700। अब इस 5,700 का यूज हम पहले बैड डेब्ट्स को राइट अप करने में करेंगे, उसके बाद अगर बचेगा तब रिवोल्यूशन में ट्रांसफर करेंगे। अगर मान लो कि हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविजन पूरा बैड डेब्ट्स राइट अप नहीं कर पाता तो हम रिवोल्यूशन को डेबिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझना, अभी ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं बट मैं बता रहा हूँ। मान लो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो हमने 5,700 रुपये डेबिट किया है, ये मान लो कि 2,000 रुपया होता, एक्सेस हमारा 2,000 होता, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000 और टू बैड डेब्ट्स 4,000 होता, तो 2,000 कम पड़ गया। तो अब 2,000 रुपये एडजस्ट करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ प्रोविजन हमारा ज़्यादा है, तो जो एक्सेस बचा उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। यू विल सी next journal entry is there are so many items on which you are incurring the loss at the time of revaluation account due to change in price. So you will find in the question creditors include an unrecorded creditor of rupees 2,000 now is to be recorded. तो creditors बेटा liability होता है और पहले से रिकॉर्ड नहीं था, अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होगा, तो ये लॉस आएगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स देखो आप 3,000 लिख लिए। पेटेंट्स हमारा एसेट्स होता है और एसेट्स को पूरा तरीके से राइट ऑफ कर देना, तो राइट ऑफ करना है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट, ठीक है। 60,000 लॉस हो गया। फिर स्टॉक भी हमारा रिड्यूस हो रहा है 5,000 से, तो वो भी लॉस हो रहा है, तो रेवोल्यूशन डेबिट टू स्टॉक। मशीनरी की वैल्यू भी कम हो रही है हमारी, सो वो भी डेप्रिसिएट हो गई, और बिल्डिंग भी डेप्रिसिएट हो गई हमारी 10,000 से। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया है, तो सब पे लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू द लॉस आइटम, ये सारा हो गया। तो टोटल इसको कर रहे हैं अगर क्रेडिट वाला ये सारा, तो आ रहा है 1,10,000, यानी हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 1,10,000 से, और पिछले स्लाइड में रिवोल्यूशन क्रेडिट है 1,700 से। सो अब हम लोग को करना है क्या है, क्लोजिंग एंट्री करना है, ओके। सो क्लोजिंग एंट्री में आप देख रहे हो कि डेबिट ज़्यादा है तो लॉस आएगा, है ना। 1,10,000 रुपये, तो 1,10,000 रुपये में से 1,700 रुपये जो पिछले वाले स्लाइड में क्रेडिट किए हैं रिवैल्यूएशन को, वो प्रॉफिट है और ये लॉस है, तो माइनस करेंगे तो नेट लॉस कितना आ रहा है, 1,08,300, ठीक है। सो 1,08,300 आया, तो इसको सभी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट यानी राइट अप कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियोज, समीर्स कैपिटल, यास्मीन एंड सलोनी इन 4:3:3, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमारा खत्म हो गया बेटा। आप देखो दो स्टेप खत्म है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रीवैल्यूएशन। अब आते हैं थर्ड। सो थर्ड पे देखो आप लोग कि क्या हमको करना है। थर्ड स्टेप में हम लोग सबसे पहले नया जो गुडविल वैल्यूएट किया गया था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ समीर, तो 5,40,000 की फर्म की गुडविल आई है, उसको हम लोग जानते हो कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में करते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर जो होता है वो रिटायरिंग पार्टनर जो होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, और रिमेनिंग पार्टनर जो होता है वो गेनिंग पार्टनर होता है, राइट। तो यहाँ पर यास्मीन और सलोनी गेन कर रहे हैं और समीर तुम्हारा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कितना कर रहा है कैसे पता चलेगा, ठीक है।
तो यास्मीन और सलोनी का ओल्ड रेशियो तो भाई 3:3 है, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 4:3:3 है ओल्ड रेशियो, बट नया रेशियो हमारे ख्याल से क्वेश्चन में आपको चेंज कर दिया है, 3:2 कर दिया है। तो आप सबसे पहले अपने नोटबुक पर सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो यानी गेनिंग रेशियो पता करेंगे। गेनिंग रेशियो कैसे पता करते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं, ये फॉर्मूला है। अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर रहे हैं तो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। सो ओल्ड रेशियो आपका है 3/10 और 3/10 दोनों का है, और न्यू रेशियो आई थिंक 3:2 दिया होगा, आप देख लो क्वेश्चन में। तो 3/5 एंड 2/5 जो भी है आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट द गेनिंग। ओके, तो जो भी गेनिंग रेशियो आया, तो गेनिंग रेशियो 3:1 का आ रहा है, आप चेक करेंगे तो गेनिंग रेशियो 3:1 आएगा। सो ये 2,16,000 3:1 में हम लोग बांट देंगे, मतलब यास्मीन एंड सलोनी विल कंपनसेट टू समीर, राइट। तो समीर का शेयर 4/10 है, तो 4/10 हम निकालेंगे 5,40,000 रुपए का, तो 2,16,000 आएगा, और उसको इन लोग के गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। तो ये हो गया रिकॉर्ड ऑफ गुडविल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट you will find profit and loss. I think this is just repeating. You will see students, I had shown this topic I think already. If it is duplicate, so you ignore this na. Once at the time of accumulated profit loss reserve, I have shown you people Samir's capital debit, Yasmin's capital debit, Saloni's capital debit to profit and loss account. I think this slide already have shown. If it is duplicate, so you will cancel this. Next, this is what last entry in the this color. This entry will be after making the partner's capital account. What is this? This is for the settlement of Samir's capital. When we prepare the capital accounts, we will find the total amount due to Samir is coming rupees 4,76,680, and it should be transferred to his loan account, because I have taught you all people in the previous classes if there is no information regarding the settlement of the retiring partner, so retiring partner's capital account should be transferred into his or her loan account. But if it is saying in the question that retiring partner should be paid immediately, so you will make payment like Samir's capital account debit to bank account. But if there is no information, you will transfer it into loan account. And there may be an alternate information. It may be said in the question some amount of the retiring partner should be paid immediately and balance would be transferred. So suppose that कि इस क्वेश्चन में 4,76,680 है ना। मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि 76,680 रुपीज पेड कर दो, और बाकी लोन में यहाँ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट 76,680 एंड टू समीर्स लोन अकाउंट 4 lakhs। अगर ऐसा कहता तो कुछ नहीं बोल रहा है तो हम सीधे सीधे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि ऑल जनरल एंट्री यू ऑल हैव डन। one general entry is duplicate here in the middle one, profit and loss. Now we are moving forward for the ledger. Okay, so this is the board exam question. You can see this is not tough, this is very simple, but you should clear your concept. Okay students, so now I'm moving for the next step. The next step would be revaluation. You know, you will see here revaluation account. So we will prepare revaluation account, and in front of you I have already solved here. This one is debit side, okay, and left hand side for the newer student who doesn't know ki what is the debit side and credit side. I think everybody is knowing this. So this one is credit side, right? So now you will see revaluation account is the nominal account, and the nature of the rule of revaluation account is debit all losses, expenses and losses, and credit all income and gains. So if there is an income at the time of revaluation, we will write in the credit side. If there is loss, we will write in debit side. Okay, so when you will find first information regarding provision for doubtful debt is given, so you have found the provision for doubtful debt account debit to debtors and to revaluation लिखा है आपने, है ना। तो क्यों लिखा है टू रिवैल्यूएशन? क्योंकि आपको 1700 से प्रॉफिट हो रहा है। सो यहाँ लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1700, 1700, राइट।
तो ये हो गया प्रॉफिट का। उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the loss, because sometimes the asset is decreasing and sometimes liability is increasing. You will find first creditors account rupees 20,000. Why we have written? Because creditor is increasing by rupees 20,000. There was not recorded, yani this can be say कि this is unrecorded liability as per the information. ये क्रेडिटर पहले से बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं था, बट अब रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा, ठीक है। लॉस पेटेंट एसेट्स होता है, आप कह रहे हैं इट शुड बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। रिटन ऑफ मीन्स इसको खत्म कर देना है, माइनस कर देना है पूरा बिजनेस से, तो आपका एसेट्स इतने रुपए से कम हो जाएगा, तो ये लॉस हो रहा है। स्टॉक को रिड्यूस करना है 5,000 रुपीज से, मशीनरी 15,000 और बिल्डिंग 10,000, ठीक है। तो ये सब लॉस हो रहा है। तो व्हेन यू विल टोटल इट बाय ऑब्जर्वेशन, students, by observation we can see here the total of debit side is 1,10,000 and total of credit side is 1,700 only. So debit side is more, so we should write the same amount in the both side, and now from 1,10,000 we should minus 1,700, so the balance would be 1,08,300, and this 1,08,300 should be divided between Samir, Yasmin and Saloni in their old profit sharing ratio, that is 4:3:3. Okay, so you will find, students, the revaluation account. Take the screenshot of it. Done? Aniket, are you getting? Aniket? Yes, sir. Beta, everything is okay? Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. Now I'm moving for the capital account. So you will see how to prepare partners capital account. So students, as you know, in the previous classes already I have taught you all people how to prepare the partners capital account. So this is the heading of the partners capital account. Now you will prepare the format. I think one column will be for the particular and other column will be for the number of partners in the both side. So you will see here in debit side, you will find this is what particular, then Samir, Yasmin and Saloni, and same column would be repeated here, particulars, Samir, Yasmin and Saloni. And as we all are knowing that key capital account should be start from the opening balance in the case of retirement or admission, whatever. So first of all, we should write the buy balance BD if balance is given in liability side. So you will find in the liability side of the balance sheet, there would be given the capital of Samir, Yasmin and Saloni. So that should be written in the credit side, right? So now you see what is the amount. I think 3 lakh capital is of Samir, 2,50,000 capital of Yasmin and 1,50,000 capital is given for the Saloni. Okay. So after that we used the second step, accumulated profit loss reserve and fictitious assets. So now next you will see reserve fund is given 60,000. So I have distributed here 24,000, 18,000 and 80,000 in their old profit sharing ratio, right? Now profit and loss is given in the asset side 50,000. So it should be also written up between Samir, Yasmin and Saloni in their old ratio, that is 4:3:3. So I have distributed this one. Okay, students. Now after the second step. So second step you will find there is a loss on revaluation. Okay, but you can pass entry revaluation account related or goodwill adjustment, any of them. First of all, so I am writing here by Yasmin's capital and by Saloni's capital. Why? Because Samir is the retiring partner and total goodwill of the firm is given 5,40,000. And while we are calculating the Samir's share of goodwill, so it will be coming 1,62,054. So you will add it, so 2,16,000. Okay, so 2,16,000 is the total goodwill of the Samir. It should be given by Yasmin and Saloni in their gaining ratio, so 3:1. And now it should be written in the debit side of Yasmin and Saloni, the same amount. So you will see Yasmin's capital has been debited by 1,62,000 and Saloni's capital has been debited by 54,000. Okay, so this amount we have transferred here in the both sides. So we can say it contra entry for the goodwill adjustment. We do pass the contra entry in the both sides. This means gaining partner and debit partner. Gaining partner should be debited like Yasmin and Saloni, and sacrificing our retiring partner should be credited like Samir. Okay, now revaluation.
So you will find revaluation, there is a loss on revaluation. The Saloni's share is 32,490 and now Samir's share is 43,320 and Yasmin is 32,490 because the profit sharing ratio is 4:3:3. So the total loss of the revaluation account should be divided between Samir, Yasmin and Salonin in their old profit sharing ratio. So I have written. Okay. सो यहाँ तक समझ में आ गया कि रेवोल्यूशन का जितना हमने जर्नल एंट्री किया वो सब लिख दिया। तो याद रहे कि कहाँ लॉस लिखना है, कहाँ प्रॉफिट। अगर ये रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट रहा होता तो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। बट लॉस था इसलिए हम लोगों ने डेबिट में लिखा। और गुडविल ट्रीटमेंट हमेशा याद रखना, अक्सर स्टूडेंट ये कंफ्यूज करते हैं, मतलब गलत कर देते हैं आपका ये रिटायरमेंट चैप्टर में। पहले आप ध्यान रखो कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। अक्सर लोग करते क्या कि लास्ट वाले में अमाउंट लिख देते हैं, क्योंकि अक्सर लास्ट वाला पार्टनर रिटायर होने का इन्फॉर्मेशन दिया होता है। बट यू शुड रीड इन द क्वेश्चन प्रॉपरली विच वन इज रिटायरिंग। तो जो रिटायर होगा उसके कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे ये अमाउंट जो गुडविल का उसके हिस्से का आएगा, और डेबिट करेंगे उस पार्टनर का जो बचा हुआ पार्टनर है, ठीक है। तो अब यहाँ तक आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि समीर का बैलेंस कितना आ रहा है। तो जब आप टोटल कर रहे हैं तो समीर का आप चेक करो 3,24,000, 1,62,054। सो व्हेन यू आर टोटलिंग अप द समीर्स कैपिटल इन द क्रेडिट साइड, तो यू विल बी गेटिंग 5,40,000। तो सेम अमाउंट शुड बी रिटर्न हियर 5,40,000, एंड नाउ फ्रॉम 5,40,000 you will minus 20,000 in share of profit and loss in debit side and 43,320, इन दोनों को आप लेस करो। सो आपका जो बैलेंस आएगा वो समीर को पेमेंट करना है। तो क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि समीर को तुरंत पेमेंट कर देना, तब तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे या कैश लिखकर, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। सो आप देखो कितना पैसा लोन में आएगा। आप लोग पेन पेपर लेकर कैलकुलेट करो, देखते हैं किसका इसका आता है। यस गौतम, कैलकुलेट करके बताओ समीर का पैसा कितना आ रहा है बैलेंस। गौतम, महिमा, मृत्युंजय, सभी लोग कैलकुलेट कीजिए नोटबुक पे। यू आर डूइंग डेबिट माइनस क्रेडिट, जो टोटल 5,40,000 है उसमें से माइनस कीजिए समीर का। अंजलि, आर यू डूइंग? अंजलि? यस सर। हाँ बेटा, डू दिस, माइनस करके बताइए। सर 4,74,680। अच्छा, ये तनिष्का तो बता रही है, और बाकी लोग? तनिष्का का आंसर सही है? कौन कौन एग्री है? मृत्युंजय? मृत्युंजय? मृत्युंजय सिंह डन? नो सर, 4,79,680 आएगा। हाँ, सभी लोग कर लो। मैसेज बॉक्स है ना, एक्सेस मैसेज बॉक्स बेटा, चैट बॉक्स में आप लिखो अपना अपना आंसर सभी लोग। आई कैन सी फ्रॉम हियर, जस्ट राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। Write your answer here. You all are able to access the message na chat box. Write the answer. तनिष्का, महिमा, सभी लोग कटो बेटा, सिर्फ माइनस करना है 2 वर्ड, इतना समय नहीं लगना चाहिए। तनिष्का, आर यू राइटिंग? यस सर। कितना मैसेज, कितना लिखा? अभी तक आया नहीं आपका मैसेज। ओके,
तो चलिए हम दिखाते हैं कितना इसका आंसर आ रहा है। आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा इसको। So you will see 4,76,680. Is it correct? Is it correct? 79,600. हेलो कैसे बेटा माइनस करो आप 5,40,000 में से। देखो यहाँ इसको ऐड करो, 0 0 ये हो गया, 2 8 10 0 4 6 10 0 लगा, 1 हो गया, 1 3 4 4 6 10 0 लगा, 1 उतना ही आया है। ठीक है ना? हाँ, जितना आप बोल रहे हैं उतना है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो 4,76,680। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर 79,000 होगा। बेटा आप टोटल करो, आप 4,79,600 20 कितना माइनस कर रही हो? 63,320 माइनस कर रही हो 5,40,000 से। माइनस करो 5,40,000 माइनस करो। आप लोग सिंपल सब एडलेस आप लोग करने में इतना समय लगा रहे हो। 5,40,000 माइनस 63,320। तो आपको जो आंसर मैंने लिखा है वही आंसर आ रहा है। आप किस हिसाब से आप लोग माइनस कर रहे हो? क्लास 12th में हो आप लोग और माइनस नहीं आ रहा है। ठीक है, यही आंसर आएगा, आप चेक कर लो। बैलेंस देखो आप लोग सब लोग। सो बैलेंस अब किसका निकालेंगे? समीर का तो निकालना नहीं है बैलेंस, बिकॉज समीर हैज रिटायर्ड नाउ। सो यास्मीन एंड सलोनी। सो अब आप लोग बैलेंस ठीक उसी तरह 2,68,000 माइनस दिस 3 आइटम एंड 1,63,000 माइनस दिस 3 आइटम। So you will find the balance. So now you can see Yasmin's balance is coming 58,500 and Saloni's balance is coming 66,510, right? So now this is the whole capital account. Capital account has been done. So you can take the screenshot of it. अब स्क्रीनशॉट इसका ले लो सभी लोग। कैपिटल अकाउंट का फिनिश हो गया, यानी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस लिखा, गुडविल का रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसके बाद हमने रिवोल्यूशन का रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद सेटलमेंट कर दिया समीर का बाय ट्रांसफरिंग इनटू हिज लोन अकाउंट, एंड आफ्टर दैट बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब रिमेनिंग पार्टनर। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग फॉर द बैलेंस शीट फाइनली। देखो यहाँ पर बैलेंस शीट as at 1st April, because on 31st March he has retired, तो on 1st April और 1st April को रिटायर होगा तो उसी डेट को बनेगा। so देखो आप लोग यहाँ, so in the asset side cash account is as it is, there is no change, but in debtor was 90,000 less bad and doubtful debt 8,300, because in the original balance sheet it was given 10,000, but here 4,000 bad debts and 4,300 provision. So total 8,300 will minus, so net debtor will be coming 81,700. Stock was earlier 1 lakh, it has been reduced by 5,000, so it will be written at 95. Machinery was earlier 3 lakh, it has been written by 15,000, so 2,85,000. Building was earlier 2 lakh, it has been reduced by rupees 10,000, so it should be written 1,90,000. Okay. Now in liability side, earlier creditor was 1,10,000, but in the information there was unrecorded creditor of rupees 20,000. So you will add it. So 1,30,000. Now Samir's loan. So you have to take this amount from the capital account 4,76,680, और इसी के लिए हमने लास्ट में जनरल एंट्री किया था कि समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर्स लोन, फिर यास्मीन्स और सलोनीज कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड नॉट टोटल इट। तो आफ्टर टोटलिंग द फाइनल अमाउंट तो 7,31,700 इन बोथ साइड। नाउ योर क्वेश्चन इज डन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप देख लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ क्वेरीज है तो यू कैन रेज योर क्वेरी। डन बेटा?